ਸ਼ਬੀਰ ਬੰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਾਰ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ 2 ਕਾਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ 4 ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬੀਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਈਨਾ? 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਈ फोटोग्राफी थी हाई क्लास का। अभी तक इस पे किसी किस्म की कोई पेश रफ्त नहीं कर रहे। वजारत दाखिला की इंफॉर्मेशन को सामने रखें तो फिर एयरपोर्ट गलत है। आखिर कौन है सही फिर? अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। नाज़रीन, एक पाकिस्तानी लड़का, इन माँ बाप का बेटा शबीर, जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल थी, तो उसने सोचा कि मैं मेहनत मजदूरी करने के लिए और अपने घर के हालात बदलने के लिए चाइना जाता हूँ। तब उसकी उम्र तकरीबन 24 साल थी। आज 2022 है। आज तक उस लड़के का पता नहीं चल सका कि वो चाइना की जेल में क्यों बंद है। चाइना की जेल में बंद होने के बावजूद वो लड़का अपने पेरेंट्स से कॉल्स पर बात तो कर सकता है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि मैं किस हाल में हूँ और मुझे क्यों बंद किया गया है। और ना ही किसी हुकूमत ने कोई ऐसा इकदाम उठाया कि शबीर को पाकिस्तान वापस ला सकें। माँ जी से बात करूँगा और बच्चे के वालिद साहब से बात करूँगा और जानूँगा कि क्या ऐसा हुआ, आपका बेटा कैसा था, क्यों गया था चाइना और क्या मामलात बने वहाँ जाकर। अंकल, मैनू दसो कि तुहाडा मुंडा की करन गया सी चाइना? ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਸਲਟਾਂ ਛੁੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ। 5-7 ਬੰਦੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਸਾਹ ਇਨਕਾਰ, ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 2.5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਨੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਹੀਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾਂ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ, ਅੱਧੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਸ। ਕੀ ਕਿਸੇ 2 ਨੰਬਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਚਾਈਨਾ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਟਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਣ, ਘਰ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਦਲ ਲਿੱਤੇ? ਬਦਲ ਲੈਣ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ। ਬਥੇਰਾ ਫਿਰੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਥੇਰਾ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਭੈਣਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਜਾ ਭੈਣਾਂ ਲਿਆ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਪੈ ਤਸਬੀਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮੋਟੋ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖੇ ਵੀ ਵੀਰ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ 6 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ। 8ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਦਿਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਕੀ ਸ਼ਬੀਰ ਬੰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਾਰ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ 2 ਕਾਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ 4 ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁਣ? ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ,
ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਬਸ ਇਹ ਖੈਰ ਮੇਰੀ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬੀਰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਆਂਦਾ ਅੰਮੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਬੂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਉ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬੀਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਈਨਾ? 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 16 ਸਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਸੈਨ ਕਿਧਰ ਦੀ ਗਿਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਐਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਬੂਹੇ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣੇ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿ ਕਿਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਧਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਵੇਗਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੋਲਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਬੀਰ? ਹਾਂਜੀ 16 ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕਦਰ ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੌੜ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੌੜ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਫਿਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਦੌੜ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਭਰਤੀ नहीं होया। आपने जाना कि किस दर्द से गुजर रहे हैं ये माँ बाप, जिनका बेटा तकरीबन 17 साल से उनकी नज़रों से गायब है और मालूम ही नहीं है कि किस हालत में है वो और किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहा है। सिर्फ़ शौक़ था कि ज़्यादा पैसा कमाऊँगा, अपने माँ बाप को अच्छे हालात वाली खूबसूरत ज़िंदगी दूँगा, लेकिन बदकिस्मती से वो बेचारा आज तक वापस ना आ पाया। मेरे साथ शबीर के दोस्त मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करूंगा सारा मामला, जो इस सारे मामले में इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह शबीर को वापस लाया जाए और इन पेरेंट्स का सहारा बनाया जाए। आइए उनके पास चलते हैं। मुनीर साहब, अभी तक क्या पेशरफ्त हो पाई है? क्यों नहीं शबीर का मालूम पड़ सका कि क्या हुआ है, क्यों उसको बंद किया गया चाइना में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो जो है ना गवर्नमेंट सही तरीके से हमें बता सकती है कि आखिर क्या वजह है कि जो हमारा मुआहदा साइन हुआ है पाकिस्तान और चाइना का, नवंबर 2018 में ये मुआहदा पाकिस्तान और चाइना का साइन हुआ। उसके बाद अभी तक ये अक्टूबर 2020 में नाफिजुल अमल भी हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पे 4-4.5 साल गुजरने के बावजूद किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। हम जो है ना इस मामले पे हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस लिखी, बहुत सारे इदारों को, आर्मी चीफ़ को, चीफ जस्टिस साहब को, सीएम को, पीएम को, एम्बेसीज को, ह्यूमन राइट्स को, वजारत ख़ारजा, दाखिला, सबको जो है ना हम इसमें इन्वॉल्व करते थे कि 17 सालों से आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं? बिल्कुल 17 सालों से मैं अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं की? मैं 2009 में जो है ना इस केस के साथ अटैच हुआ था। उसके बाद हम जो है ना इस पे काफ़ी सारी कोशिशें करते रहे, प्रोटेस्ट किए हमने, इस पे बहुत सारे एप्लीकेशंस लिखते रहे। सिर्फ यही नहीं कि हम अकेले ही लिख रहे थे, इस मामले में हम आपको ये बताता चलूँ कि इस पे हमारे मुताबिक 595 के करीब पाकिस्तानी कैदी जो हैं वो चाइना में मौजूद हैं, और इसमें हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी इसका केस चल रहा है। मार्च 2018 में कैबिनेट में बिल भी पास हो चुका है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है क्या कहते हैं हम, इसमें था कैबिनेट में बिल पास हुआ था, नून लीग की गवर्नमेंट थी, और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने भी एक्शन लिया इस पे। उनके ये रिमार्क्स थे कि मुझे इस वक्त सबसे ज़्यादा शिकायत चीन के हवाले से मिल रही हैं, वजारत दाखिला कहाँ है, मुझे बताया जाए कितने अरसे में कैदी वापस आएंगे। फिर इसमें नून लीग की गवर्नमेंट ख़त्म हुई, पीटीआई की गवर्नमेंट आई, पहला वफ्द गया चाइना 2018 नवंबर 2018 में, इसमें पाकिस्तान और चाइना का ट्रीटी साइन हुआ।
लेकिन अभी तक इस पे किसी किस्म की कोई पेश रफ्त नहीं कर रहे। आखिर क्या वजह है, क्यों ऐसे सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे ऐसे पूरे पाकिस्तान से ऐसी जो है ना पूरी कंट्री हमारी जो है वो ऐसे वालिदैन से ऐसे जो है ना वो बहन भाइयों से भरी पड़ी है। क्या कोई शबीर नशा और चीज़ें लेकर गया था, ऐसा कोई सीन है? इस बारे में जो है ना हमें तो वो कुछ भी नहीं क्लियर कर सकता, ना ही वो हमारे साथ कोई किसी किस्म की बात शेयर करता है। जब उसकी कॉल आती है, वो अपने वालिदैन को कॉल आती है, वो उससे पूछते हैं तो वो बताता है, कहता है यार मुझे छोड़ दें आप, कि मैं क्या किया मैंने, या मेरे बारे में पूछना छोड़ें, आप मुझे सिर्फ अपने बारे में बताएं, क्योंकि मेरी यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड होती है। नहीं बोलते वो? बोलते हैं, बस हालचाल पूछते हैं वालिदैन का, बहन भाइयों का, बस यही वो कह सकता है, और इसके अलावा किसी किस्म की ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता जिसमें ये लगता है कि उनके बारे में कोई भी बात हो रही है, चाइना के बारे में या उनसे रिलेटेड कोई भी बात हो रही है। चाइना जाते ही उनको पकड़ लिया गया था या कुछ अरसे बाद पकड़ा गया? इसमें जो है ना थोड़ा सा हमें डाउट है। देखें, वजारत दाखिला से जब हम पूछते हैं तो वो हमें लेटर जो देते हैं उसके मुताबिक कि जी यहाँ से जब गया था, वो एयरपोर्ट उतरा तभी अरेस्ट हो गया। लेकिन जब वो गया उसके बाद 2-2.5 साल तक उसका कुछ पता नहीं था। उसके भाइयों ने यहाँ से एयरपोर्ट से जब उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी, वो टोटली इसके जो है ना अगेंस्ट है। वो ये थी कि जी वो यहाँ से गया, बैंकॉक गया, वहाँ पे उसने 4 दिन का स्टे किया, उसके बाद उसने बैंकॉक से फ़्लाइट ली, ग्वांसू गया और वहाँ पे उसने 5-7 दिन का स्टे किया। उसके बाद जब वापस आ रहा था तब अरेस्ट हुआ एयरपोर्ट पे। लेकिन वजारत दाखिला के मुताबिक वो यहाँ से जब गया तभी अरेस्ट हो गया। एक तो इन दोनों चीज़ों में मुतसाद आ गया। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो वल्लाह आलम। अब जो हमें वजारत दाखिला इंफॉर्मेशन देती है वो टोटली इसके बरक्स है। फिर अगर एयरपोर्ट की इंफॉर्मेशन को देखें तो वजारत दाखिला की टोटली इन्फॉर्मेशन गलत है। अगर वजारत दाखिला की इन्फॉर्मेशन को सामने रखें तो फिर एयरपोर्ट गलत है। आखिर कौन है सही? फिर वल्लाह आलम कौन सही है कौन नहीं। हम ये नहीं चाह रहे कि जो है ना हम इदारों को जो है ना वो सच या झूठ में साबित करें या उन्हें इस मामले में लेके आएँ। हमारा बस इतनी जो है ना वो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि जैसे ये वालिदैन हैं या ये माँ बाप हैं, इनके बहन भाई हैं, 17 सालों से ये इस कर्ब में गुजार रहे हैं कि कब इनका बेटा वापस आएगा। इनकी वालदा की ये हालत थी कि आप यकीन करें, जब वो बास टाइम ऐसी जो है ना कंडीशन आ जाती है कि वो यहाँ से घर से निकलती हैं और सारा दिन रोड पे जाके बैठी रहती हैं और देखती रहती हैं कि मेरा बेटा इधर से आएगा, अभी इधर से आएगा, मैं उसे पकड़ूंगी, अपने गले लगाऊंगी। लेकिन 17 साल से वो इसी जो है ना वो इंतज़ार में बैठी हैं। पिछले दिनों काफ़ी इनकी तबीयत ख़राब थी, बीपी इनका शूट कर जाता रहा सिर्फ इसी टेंशन से कि पता नहीं कब आएगा शबीर। कई मरतबा उसने कहा कि मैं बस आ रहा हूँ मेरी। बल्कि यहाँ तक कि जितने कैदी हैं वहाँ पे उनमें से बेशतर अपनी सज़ाएँ मुकम्मल कर चुके हैं, फिर भी उनको नहीं छोड़ा गया। फिर भी नहीं अभी तक छोड़ा गया। आखिर क्या वजह है कि वो सज़ाएँ मुकम्मल होने के बावजूद उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा? यहाँ हमारी गवर्नमेंट जो है वो उनकी नाअहली है, जो उनसे पूछते भी नहीं। पिछले दिनों जब उसकी कॉल आई थी उसने हमें ये भी बताया था कि हमारे पास कौंसलेट को आए 2 साल गुजर गए हैं, 2 साल से वो हमारे पास नहीं आ रहा। हमने जो है ना इस सिलसिले में जब वजारत ख़ारजा में कॉल की, उन्होंने मुझे जो है आगे DG चाइना का नंबर दिया। मैंने DG चाइना को कॉल की तो उन्होंने आगे मुझे AD चाइना का नंबर दिया। मेरी उनसे जब बात हुई उन्होंने कहा जी हमें पर वीक के जो है ना हिसाब से हमें डिटेल मिल रही है कि हमारे कौंसलेट वहाँ पे जा रहे हैं, एम्बेसी के जो एम्बेसीडर वगैरह है वो वहाँ पे जा रहे हैं और वो ओके की रिपोर्ट दे रहे हैं, जबकि वहाँ पे जेलों में जो हालात हैं वो इनसे टोटली बरक्स हैं। वहाँ पे जो कैदी हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। साल में 1 मरतबा खाने के लिए वो आता है कंटेनर जिसमें गोभी के पत्ते, पालक या मूली के पत्ते होते हैं, वो पूरा साल वो चलते हैं। और यकीन करें आप, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम उनकी बातें सुनते हैं। वो कहता है जी यहाँ पे कौंसलेट को आए 2 साल हो गए हैं, हम उन्हें एप्लीकेशंस लिखते हैं, हम उन्हें कॉल्स करवाते हैं कि जी आके हमारा हाल पूछ लो। मेडिकल की ये हालत है कि वो सिर्फ डिस्प्रिन या पेनाडोल वो दे देते हैं। अगर चाहे जिस मर्ज़ी कंडीशन में है मरीज़, वो जिस मर्ज़ी हालत में है उसे 2 पेनाडोल या 1 या 2 पेनाडोल या डिस्प्रिन दे देंगे। यहाँ तक कि वहाँ पे जो कैदी हैं उनमें से
बहुत सारे जो है ना वो इस कदर बीमार हैं कि पिछले दिनों मेरी एक लाहौर के जो है ना वो कैदी के रिलेटिव से बात हुई। उसने बताया था कि मेरा भाई कैंसर की लास्ट स्टेज पे है और उसके बावजूद उसे नहीं छोड़ रहे। अब वो किस हिसाब से वो कॉल करता है, मतलब वहाँ पे अगर मेहनत ज़्यादा करता है तो फिर कॉल लंबी कर सकता है, अगर काम कम करता है फिर कॉल शॉर्ट, ये क्या हिसाब होता है? बिल्कुल ऐसे ही है। वो वहाँ पे उससे काम करवाते हैं। वो हमें उसने बताया था कि जूते भी सिलाई करते हैं, मप्पर भी सिलाई करते हैं। वो उस पर डिपेंड करता है वो कितना अच्छा काम कर रहा है। जितना अच्छा काम करेगा उतना ज़्यादा टाइम उसे मिलेगा घर में बात करने के लिए, और वो भी मैक्सिमम लिमिट है। वो मैक्सिमम लिमिट ये है कि 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा भी आप बात कर सकते हो तो वो 10 मिनट बस। बाकी अगर आपने काम अच्छा नहीं किया तो वो 1 मिनट देंगे या 2 मिनट देंगे, यानी कि 10 मिनट के अंदर जो है वो आपको टाइम देंगे कि इतनी देर आपने बात करनी है, और वो भी एक माह में 1 मरतबा बस। बिल्कुल जी, आपने डिटेल सुनी। मैं तो हैरान रह गया हूँ कि हमारी हुकूमतें करती क्या हैं। सिर्फ इक़्तिदार की दौर में ये 5 साल अपने पूरे करती हैं और फिर गरीब आवाम मर रही हो, जी रही हो, कुछ मालूम नहीं होता इन हुकूमतों को। इस माँ का क्या कसूर है जिसने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और फिर बच्चे को सिर्फ दूसरे मुल्कों में ज़ाया होने के लिए भेज दिया। वो बच्चा जो अपने दिमाग में, अपने दिल में बड़े बड़े ख्वाब सजाए बैठा था और सोच बैठा था कि मैं बाहर जाऊंगा, अपने घर के हालात बेहतर करूंगा, अपनी माँ के लिए मैं नए नए अच्छे अच्छे कपड़े लाऊंगा और अपनी शादी अच्छे घर करूंगा, अपनी बीवी के लिए बहुत कुछ सोच के रखा होगा उसने। उसके ख्वाब किस तरह से चिकनाचूर किए गए। और अगर हमारी हुकूमतों ने कुछ इक़दामात नहीं करने होते तो इनको लारों पे तो ना रखा करें ना, इनको ये तो ना तसल्लियाँ दिया करें कि कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, कुछ करेंगे, देखेंगे, हो जाएगा, कभी तो होगा। ये माँ बेचारी सड़कों पे जाके रुलती है, बैठती है, रोती है, कहती है कभी तो मेरा बेटा आएगा। ये बाप बेचारा जिस हालत में बैठे उसके पाँव सूजे हुए हैं, वो बेचारा बीमार है इतना सिर्फ इस वजह से कि परेशानी है, बेटा पता नहीं किस हाल में होगा, क्या कर रहा होगा। इन बेचारों को रातों को नींद नहीं आती होगी। लेकिन हमारे इक़्तिदार में बैठे हुए सियासतदान तो बहुत पुरसकून ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनको नींदें भी आती हैं, अयाशियाँ भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन बस ये नहीं हो रहा कि हम आवाम को सुन सकें, आवाम की सुनवाई कर सकें। रहम करें इस कौम पे, फौरी फिलफौर नोटिस लें और पता लगाएं कि क्यों 17 साल उस बेचारे को, उस मासूम को क्यों 17 साल दूसरे मुल्क में गुजारने पड़े, वो भी जेल में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर नोटिस लिया जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने